Hello everybody, welcome back to the channel. Are you somebody who's stuck at means or somebody whose means result just got out and you're not knowing the way how to proceed further? Or somebody who's at the beginning stage और जिसको पता नहीं है कि ठीक है how should I proceed with the means or should I prepare for the prelims or when should I start for the prelims and then what if my means is not prepared? Then this video is for you. Now see, in this video I'll be talking about the bare minimum that you need for the upcoming UPSC prelims. Okay, and this video will not only help you in prelims but also for mains. See, at the back of our minds when we are not prepared for mains, no, we know कि हम prelims के लिए prepare कर रहे हैं but somewhere our means have been compromised. Now बहुत सारे इंस्टेंसेस में हम देखते हैं टॉपर्स टॉप पे कि ठीक है 3 महीने में पीपल हैव प्रिपेयर्ड देयर ऑप्शनल दे हैव प्रिपेयर्ड देयर मेंस but trust me, this is not the case. In case you have not done it before, you'll not be able to make it in those 3 months. Because एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि those 3 months they are so tight कि आपको उसमें प्रैक्टिस भी करना है. You have to complete your paper on time. You have to provide a suitable content. You're not somebody who's practicing, right? So I just thought, let me address this issue. Now, if you are neglecting this fact, I can say that almost you'll be compromising your next year. Means for somebody like me who's not been able to qualify means the main reason for me was I was not able to complete my syllabus on time last year. That was my condition. I mean, I was just prepared for me prelims and then I did not have any enough idea for mains. तो मैंने उन 3 महीनों में I tried completing my optional as well as GS. So मेरे लिए बहुत ज़्यादा hectic हो गया था. So I just thought कि let me address this issue with you all. Now, speaking from my experience, I'll tell you, even if you're clearing prelims, then the road will not be any easier for you. I mean, the real battle is in the mains. That is what decides your merit list. Okay, this means an interview. So if you're not prepared for your mains, no, you're going to have a very tough time in those days because the competition, the आपका जो competition होगा ना exam में, they are the people who've already appeared in the interview for last 2-3 successive attempts या फिर people who have already been selected and they're doing it for improving their rank, okay? या फिर कुछ लोग होंगे जो repeatedly means दे रहे हैं. Now nowhere does that mean कि आप नहीं कर सकते हैं. What I mean is कि you have to understand the competition level at that stage. तो अगर आपने prelims कर भी लिया है ना तो means is very subjective. लेकिन अच्छी बात ये होती है कि unlike prelims, means is a proper planned थिंग, उसका सिलेबस डिफाइंड है एंड अगर आप सही अप्रोच में पढ़ते हैं ना उसको तो आपको पता चलेगा कि इट इज यील्डिंग द रिजल्ट्स. ओके, now for those who gave means this year and they could not clear, now you must have had expectations from yourself कि ठीक है इस बार मेरा पेपर निकलेगा and somehow you could not make it. तो I'm sure कि आप उन 3 महीनों में उतने फोकस से अच्छे से नहीं पढ़ पाए होंगे. मतलब अगर आप पढ़ पाए होंगे तो that's very good, but at least that was not the case for me last year. So आपको आपने वो 3 महीने यूटिलाइज नहीं किए होंगे एंड नाउ यू वुड बी हैविंग अ रिग्रेट कि ठीक है व्हाट शुड आई डू. सो यू आर फिल्ड विद एंजाइटी. आपको सेल्फ डाउट हो रहा होगा कि ठीक है मेरा इस बार भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा बिकॉज आई एम नॉट एट अ बेटर स्टेज एनी हाउ ना. तो यू विल बी हैविंग अ लैक ऑफ मोटिवेशन. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, it's not that late, okay? Not that late. You can still do it and you can ensure that your name is in the list. तो what I am trying to say is कि there are few things जो आप अभी भी कर सकते हैं. See, the exam is in May and अभी भी आपके पास 5 महीने हैं. So what you can do is कि कुछ bare minimum चीजें हैं अगर आपने वो प्रिपेयर कर ली ना तो एटलीस्ट यू विल बी एट अ सेफ स्टेज कि ठीक है मेरे को उन 3 महीनों में आई विल बी हैविंग अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा प्रिविलेज. नाउ व्हाट आर दीज थिंग्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास अभी 1 महीना है. होल ऑफ दिस जनवरी एंड ये जो थोड़ा सा बहुत दिसंबर बचा है मतलब इट्स ऑलमोस्ट ओवर, बट ये जो पूरा जनवरी है यू कैन वेरी वेल फोकस ऑन मीन्स. आई एम स्पीकिंग दिस फॉर द पीपल हु हैव अपीयर्ड इन मीन्स दिस टाइम और उनका नहीं हुआ है. आपने एक बार प्रीलिम्स निकाला था, आप दोबारा भी निकाल लेंगे. यू जस्ट नीड टू हैव दैट फेथ इन यू एंड आपको कॉन्फिडेंस रखना है. आप टाइमली स्ट्रेटेजाइज करके अगर चीजों को लेके चलेंगे तो यू विल डेफिनेटली बी मेकिंग इट दिस ईयर ऑल्सो.
नाउ देयर आर ओनली टू सब्जेक्ट्स. आपको अभी तक समझ में आ गया होगा जब आपने एग्जाम दिया होगा कि देयर आर टू सब्जेक्ट्स जिन पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है. वन इज द ऑप्शनल एंड सेकंड इज द एथिक्स. ठीक ठीक है. सो आई विल टेल यू ऑप्शनल एंड एथिक्स. आपको इस साल समझ में आएगा ना जब आपकी मार्कशीट आएगी फॉर द वंस हु आर गिविंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, और जिनका काफी हो गया है तो उनको पता होगा अच्छे से कि ऑप्शनल, एथिक्स और ऐसे ये तीन सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स बहुत ज्यादा वेरी करते हैं. फॉर ऑप्शनल अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, आपने अच्छे से तैयारी की है, तो यू विल शॉर्टली बी गेटिंग गुड मार्क्स, एटलीस्ट डिसेंट मार्क्स आपको मिलेंगे बिकॉज इट इज रिफ्लेक्टेड इन द रिजल्ट. ओके. नाउ फॉर ऑप्शनल व्हाट यू कैन डू इज कि आप ना एटलीस्ट अपना 60 to 70% ऑप्शनल खत्म कर लें. फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड इन मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट देम कि आपने एक बार मिनिमम रीडिंग कर रखी होगी, अच्छे से पढ़ा होगा, आपने एग्जाम भी लिखा है, तो आप एटलीस्ट 60 to 70% बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट करके रख दीजिए कि ठीक है मेरे को ये लिखना है. एंड इफ पॉसिबल आप मतलब ऑलमोस्ट 80 to 90% कर सकते हैं अगर आपने किया था तो. और यू शुड फोकस ऑन द एरियाज जो आपके कंप्लीट नहीं हुए थे ऑप्शनल में. लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरा ऑप्शनल था एंथ्रोपोलॉजी, तो माई पेपर 2 वॉज नॉट completed, so I'll be focusing on my tribal part more. Okay, you will be further going on to this optional I was talking about ki you have to focus on the areas that you were not able to complete, right? So you have to solve, you can have a approach of PYQs for your optional. Okay, फॉर द PYQs लाइक हम बोलते हैं कि ऑप्शनल में ना PYQ इज द राइट अप्रोच दैट यू विल बी अपियरिंग, मतलब यू विल बी गिविंग द आंसर, मतलब प्रोवाइडिंग आंसर्स फॉर योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड देन यू विल बी प्रोसीडिंग विद योर सब्जेक्ट. तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट इज लाइक जो भी आपकी मान लीजिए आप GS 1 2 3 4 के लिए टेंस्ड हैं, तो ज्यादा नहीं तो आप उसके लिए सिर्फ एक चीज करिए कि आप फॉर द टाइम बीइंग रिसोर्सेस फिक्स कर लीजिए कि मेरे को इस बुक से या इस सोर्स से ये पढ़ना है. मान लीजिए डिजास्टर मैनेजमेंट है, आपका कोई स्पेसिफिक सोर्स है तो आप उसको डिसाइड कर दीजिए. और फॉर द टाइमिंग अगर नहीं भी हुआ है तो नो नीड टू पैनिक अबाउट दैट. दिस इज फॉर ऑल द पीपल देयर, बी इट जो आप मीन्स दे रहे हैं या फिर जिनका पहली बार मीन्स देंगे 2024 में. तो आपको कुछ नहीं करना है. देयर आर ओनली टू थिंग्स. आप एक ऑप्शनल पे ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिए कि मिनिमम आपका 50 to 60% ऑप्शनल कंप्लीट हो जाए. ठीक है, क्योंकि अगर वो रहता है ना तो यू विल बी मोर टूवर्ड्स दी प्रैक्टिसिंग साइड, यू विल बी मोर अबाउट कि ठीक है एग्जाम ओरिएंटेड. अगर उस टाइम पे आप अपना सिलेबस ही खत्म कर रहे होंगे ना तो यू विल बी लैगिंग बिहाइंड. ओके, your optional has the power to break you or make you in this exam because that is the only subject जो आपको extra edge provide करता है along with the ethics and essay. ठीक है, तो आपको दो सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है, वो है एथिक्स एंड ऑप्शनल. अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आई वुड डीपली से कि ठीक है आप ना 50 to 60% अपने ऑप्शनल को कंप्लीट करने पे ध्यान दीजिए. Now for beginners and those who have not been able to clear prelims repeatedly, what you have to do is ना for the timing please start preparing for prelims. क्योंकि हर साल prelims difficult हो रहा है तो I'll never say कि जिनका प्रीलिम्स में प्रॉब्लम हो रही है हर बार तो प्लीज डू नॉट रिलाई फॉर कि मैं अभी मेंस पढ़ लूं ये पढ़ लूं. मेंस अगर आप 3 से 4 घंटे डिवोट कर रहे हैं दैट इज ओके, आप जनवरी में दे सकते हैं, बट प्लीज जनवरी से ही प्रीलिम्स पे लग जाइए. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू स्टार्ट विद योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. एनी सब्जेक्ट दैट यू आर रीडिंग उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाइए, देखिए कि थीम एरियाज कहाँ पे हैं, कहाँ से वो पूछते हैं. सेकेंड इज यू हैव टू प्रैक्टिस मॉक्स. मॉक्स विल टेल यू कि आपको सब्जेक्ट की क्लैरिटी कितनी आ रही है. नाउ सी द स्कोर इन योर मॉक्स डज नॉट मैटर. मेरे कभी भी पर्सनली मॉक्स में 90 से ऊपर नहीं आए, 90 95. एक आध बार आई थिंक आ गए होंगे 100+, बाकी कभी नहीं है. बट एवरी ईयर आई वॉज एबल टू क्लियर, मतलब ऑलमोस्ट फ्रॉम लास्ट 2 अटेम्प्ट्स आई वॉज एबल टू क्लियर प्रीलिम्स. ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, योर मॉक्स में आपका स्कोर कुछ मायने नहीं रखता. इट्स जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस एंड नोइंग कि वेयर आर यू लैकिंग, व्हाट आर योर वीक एरियाज. ओके, फोकस ऑन दैट. वो सिर्फ आपको एक एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस देते हैं. थर्ड इज प्लीज डू नॉट इग्नोर CSAT. आई रिपीट, प्लीज डू नॉट इग्नोर CSAT. CSAT ओवर द टाइम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है, आपको लास्ट ईयर का एग्जाम दिख ही रहा होगा. CSAT पे ध्यान दीजिए. नाउ फॉर CSAT आई विल बी ब्रिंगिंग अप अनदर वीडियो in which I'll be telling you and sharing my strategy. Fourth is that please finish your static till March.
Now, if you finish or start it till March, what will happen is you'll be having 2 months for your revision. And when you have your 2 months for revision ना, तो आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस होगा. एंड फॉर दिस एग्जाम ट्रस्ट मी, कॉन्फिडेंस इज द की. जब आप एग्जाम में बैठे हैं ना, यू हैव अ डिफरेंट, मतलब कंप्लीटली डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड देयर. ठीक है, आप वहां पर क्या सोचते हैं एंड हाउ आर यू एड्रेसिंग दैट सिचुएशन व्हेन यू सी द पेपर इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे. आपने पूरे साल कितना भी पढ़ा हो, इन दोज 2 hours वट एवर यू विल बी डूइंग, दैट विल बी द हिस्ट्री. ओके, रिमेंबर. ठीक है, दैट विल मेक अ हिस्ट्री. तो आपको वो चीज याद रखनी है. सो दिस इज इट फॉर ऑल. तो नाउ, तो आई जस्ट वांटेड टू टेल कि आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि आप मेंस के लिए प्लीज घबराइएगा मत. आई कैन अंडरस्टैंड, आई मेड दैट मिस्टेक, सो इवन आई विल बी फोकसिंग ऑन माई ऑप्शनल एंड एथिक्स इन दिस जनवरी मंथ. सो प्लीज यू डू द सेम थिंग. आप अपने ऑप्शनल पे ध्यान दीजिए और एथिक्स पे. इस तरीके से आपका ना मीन्स कुछ, मतलब आपका उस पर ग्रिप रहेगा. ऐसा नहीं लगेगा आपको कि यू हैव मिस्ड द बस. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.